Hello everyone, this is Priyanka Sharma. Today we will discuss about amino acids. So as we know that amino acids are the monomer units of protein, and protein indeed is very important topic in biochemistry. And when we study about molecules and about their interactions for exams, say CSIR NET, IIT JAM, for NEET and all these all exams, they all cover this important topic called amino acids. तो हम जो हमारे प्रोटीन्स जो हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री में, उसका ये बिल्डिंग ब्लॉक है. मतलब जो मेनली प्रोटीन्स बनते कैसे हैं, अमाइनो एसिड की कॉन्स्टिट्यूएंट होकर वो प्रोटीन बनता है. सो दे आर कॉल्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स. सो लेट्स स्टार्ट. सो एज I have mentioned here, they are called monomers of proteins, क्योंकि वो मोनोमर सिंगल यूनिट है प्रोटीन्स का एक अमाइनो एसिड. तो जैसे जैसे वो पूरी चेन बनती जाएगी, बहुत सारे अमाइनो एसिड फॉर्म होते जाएंगे, एक कॉन्स्टिट्यूएंट करेंगे, वैसे वैसे प्रोटीन फॉर्मेशन होती जाएगी. And these are formed by those compounds which contain carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. These four compounds are very important and they are involved in the formation of amino acids like CHON, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. On the basis of structural aspect, if we see its structure, so on this basis they are composed of an amino group, carboxyl group, a hydrogen atom and a distinctive side chain. This side R group is variant, मतलब it varies in different amino groups. So it varies, and these all four groups are, मतलब these all four amino, carboxyl, hydrogen and R group, these all are attached to a carbon atom, and this carbon is called as alpha carbon. As the chain continues, so पहला अल्फा कार्बन आ जाएगा, then we will study about beta, gamma, this chain goes on, so like alpha, beta, so this is called, मतलब जिसके साथ जो स्टार्टिंग में ये जुड़े हो अमीनो कार्बोक्सिल ग्रुप, उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन. And these amino acids are amphoteric in nature. This amphoteric term implies here that they are neither basic nor acidic. मतलब इनका ना हम अमाइनो एसिड एसिडिक नेचर शो करेगा, ना ही बेसिक नेचर शो करेगा. सो जनरली वी विल राइट इट एज, जो इनका जेनरिक फॉर्मूला है, NH2CHR This NH2 implies here for amino group, COOH for carboxylic group and H and R for these side chains, this R group. And this R group is variant. मतलब जब भी हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो कितने सारे अमाइनो एसिड्स है जो हम इसमें पढ़ेंगे, there are about 22 amino acids which are involved in the synthesis of proteins, जो बायोलॉजिकली हम पढ़ते हैं. वैसे तो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स है, लेकिन जो हम मेनली पढ़ते हैं वो 22 को, जो प्रोटीन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं. तो उनमें बाकी स्ट्रक्चर यही रहेगा, पूरा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट यही है, लेकिन जो ये आर ग्रुप है ये वेरी करता रहेगा. सो वी विल डिस्कस फर्दर. तो जब हम अमाइनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, तो वी शुड नो सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट इट, रिगार्डिंग इट, लाइक व्हाट डज अमाइनो एसिड स्टैंड फॉर, and is it basic or acidic in nature? Why amino acid not amino basic? Like हमने इसको अमीनो एसिड क्यों नाम दिया, हम अमीनो बेसिक भी तो बोल सकते थे, लेकिन नहीं. सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. तो like what does amino acid stand for? Amino acid, as I have told you, this amino acid, इसने अपना नाम ले like amino from this amino group, amine NH3 amine, जो हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन, हम अमोनिया की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, जैसे हम बोलते भी है अमाइन, यहाँ से इसका अमाइनो, और एसिड इसका जो नाम आया, दिस फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एसिड नॉट बेसिक. क्योंकि जो ये जो एसिड टर्म इम्प्लाई हुई है वो इस जो ये सुफिक्स है एसिड, इस अमाइनो एसिड में जुड़ा हुआ, दिस इम्प्लाइज फॉर दिस कार्बोक्सिलिक ग्रुप. सो is it basic or is acidic? As I have told you, they are amphoteric in nature. They are neither basic nor acidic. So amino acids act as amphoteric molecule. क्यों करते हैं वो एक्ट, दिस वी विल स्टडी. दिस एम्फोटेरिक
a compound that can act as both as base and as an acid. So when an amino acid is dissolved in water, it exists in solution as the dipolar ion or Zwitter ion. सो जब भी अमाइनो एसिड हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो काहे में डिसोसिएट हो जाता है, डायपोलर आयन में. मतलब वो सॉल्यूशन में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, डायपोलर आयन में. क्योंकि जब भी वो डिसॉल्व हुआ तो हमारे अमाइनो एसिड के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो दोनों पोल्स हुए ना. सो दैट्स व्हाई इट कॉल्ड एज डायपोलर आयन और ज्विटर आयन. So now you might be thinking कि why only Zwitter ion, कैसे नाम पड़ा होगा Zwitter ion. So Zwitter ion, जो Zwitter वर्ड है ये जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है हाइब्रिड. So hybrid, as we can see, it's the combination of positive and negative, so hybrid. So that's why it's called Zwitter ion, and it can act as either an acid or a base. So amino acid is an amphoteric molecule. ठीक है, दोनों कैरेक्टर्स है इसमें, पॉजिटिव के भी और नेगेटिव आयन के भी. सो लेट्स स्टडी फर्दर. नाउ वी विल स्टडी अबाउट लाइक बेसिक फैक्ट्स. सो देयर आर 22 अमाइनो एसिड्स दैट पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस. मैंने पहले भी बोला अमाइनो एसिड वैसे हमारे नेचर में बहुत सिर्फ 22 नहीं है, अब तो जैसे सिंथेटिक अमाइनो एसिड्स भी होते हैं. दे आर लाइक मोर देन 300 इन नेचर, दे आर प्रेजेंट. बट like for protein synthesis there are 22 amino acids that are involved, that participate in protein synthesis. So these amino acids are called standard amino acids or proteinogenic amino acids. Why proteinogenic? Because proteinogenic term implies here for protein generating amino acids. क्योंकि जो amino acids है वो building blocks है किस चीज के, प्रोटीन फॉर्मेशन के. सो दैट्स व्हाई दे आर प्रोटीनोजेनिक इन नेचर. सो now like amino acids, they are further categorized as an essential amino acids, semi essential amino acids, non essential amino acids. So जैसे अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि जो आर अमाइनो एसिड्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. So amino acids they are organic in nature. Why? Because like जब भी हम जैसे हम केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो जो उनकी बैकबोन होती है वो मेनली कार्बन या फिर हाइड्रोजन साइड ग्रुप में, साइड चेन में प्रेजेंट होंगे और बैकबोन में मेनली कार्बन प्रेजेंट होगी, तो वो होंगे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. बाकी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बाकी एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बाकी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे NaCl ले लो, HCl ले लो, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक. लेकिन हमारे अमाइनो एसिड की बैकबोन किस चीज से फॉर्म्ड है, कार्बन से. सो दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल. So amino acids are the building blocks of the protein and required for proper functioning of the body. जो हमारी बॉडी है वो कुछ अमाइनो एसिड खुद सिंथेसाइज करती है, कुछ हम एडिशनल डाइट से लेते हैं, और कुछ डाइट से तो हमें मिलते हैं, लेकिन अगर हम में मान लो कोई मॉल फंक्शनिंग है तो वो पूरी तरह से वर्क नहीं करेंगे. सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं. सो लाइक एसेंशियल अमाइनो acids, they cannot be synthesized by our body, we have to obtain them from our diet. And essential amino acids, they are basically 10 in number. And for example हमारा ये हो गया आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसिन हो गया, ये सब क्या है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. एंड देन नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दे कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज कर सकती है. सो दैट्स व्हाई दे आर नॉन एसेंशियल. हमें इनको डाइट में लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी बॉडी इसको खुद सिंथेसाइज कर सकती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन एसेंशियल. वेयर एज जिन्हें हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने की एसेंशियलिटी है, नेसेसिटी है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. Now semi-essential amino acids, they are those that can be synthesized by the body but possibly not in sufficient amount, especially in children or ill persons. Semi-essential वो हो गए जिन्हें हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर सकती है, बट कई बार क्या होता है प्रॉपर अमाउंट में,
प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर कोई बीमार है, उसमें भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही होगी बॉडी की, तो सिंथेसाइज वो नहीं होंगे। जैसे छोटे बच्चे हैं, चिल्ड्रन है सॉरी, उनमें भी नहीं होंगे। सो ये सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट सिर्फ उन्हीं में होंगे, लाइक बच्चों में एंड और इन इल persons. So essential amino acids they are 10 in number, semi essential 2, non essential 10. अब ये नहीं देखना है कि 10 essential है, 10 ये तो 22 हो जाएंगे, लेकिन नहीं, these जो सेमी एसेंशियल है आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, दे आर द पार्ट ऑफ एन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ओनली, बट और फिर बोलेंगे कि ये तो 20 नंबर्स हो गए, लेकिन नहीं, दीज 22 अमाइनो 2 आर लाइक हम आगे पढ़ेंगे अदर 20 पूरे जो सेमी एसेंशियल है आर्जिनिन एंड हिस्टिडिन, वो एसेंशियल के ही पार्ट है, और जो बाकी दो है प्रोलाइसिन एंड सेलिनोसिस्टिन, वो अलग से दो। सो दे मेक टोटल काउंट ऑफ 22 अमाइनो एसिड्स. सो essential amino acids, non-essential amino acids, semi-essential amino acids, as I have told you: histidine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylalanine, threonine, tryptophan, valine and arginine. These are essential amino acids. And non-essential amino acids: alanine, tyrosine, asparagine, aspartic acid, cysteine, glutamic acid, glutamine, glycine, proline and serine. Whereas this semi-essential, they are arginine and histidine, and these are also part of essential amino acids. पर जब हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रही होगी, और जो छोटे बच्चों में होते हैं ये आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, तब ये सेमी एसेंशियल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमें इन्हें डाइट में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वरना एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमें डाइट के थ्रू लेना पड़ता है. सो मोनोमर्स, नाउ वी विल फर्दर स्टडी अबाउट निमोनिक्स, किस तरीके से इनको याद रखा जाए. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमेशा क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, लाइक एज टॉकिंग अबाउट CSIR, नेट और PMT ले लो, नीट ले लो, कुछ भी ले लो, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं. लाइक दे विल बी गिविंग यू लाइक 4 ऑप्शंस, दे विल बी मेंशनिंग 4 अमाइनो एसिड्स, एंड दे वुड आस्क कि गिव करेक्ट आंसर रिगार्डिंग essential amino acids. They will put up the options, then you have to mark the correct options. So you need to memorize it properly, you need to understand the concept, you need to apply everything कि कौन सी क्या चीज़ है, essential होगा, non essential होगा. सो इसको याद करने के लिए, इसको मेमोराइज करने के लिए हम कुछ बना लेते हैं, लाइक निमोनिक्स के रूप में हम इसको याद कर लेते हैं. लाइक फॉर एसेंशियल, सबके अपने तरीके होते हैं याद करने के. लाइक फॉर एसेंशियल, ये तो सबसे कॉमन है, नेट पे भी सब गूगल करते होंगे जो भी प्रेपरेशन कर रहे होंगे. लाइक PVT, टिम हॉल, जैसे हम PVT, जैसे हम प्राइवेट, जैसे होती है ना कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, वैसे ही याद कर लिया कि कोई प्राइवेट टिम हॉल करके कोई कंपनी है, वो उस तरीके से याद कर लिया. दिस P विल स्टैंड फॉर phenylalanine, V will stand for valine, T will stand for tryptophan, and this T will stand for threonine, I will stand for isoleucine, M will stand for methionine, H will stand for H will stand for histidine, A will stand for arginine, L will stand for lysine, this L will stand for leucine. So like this we need to memorize. So और दूसरा निमोनिक हो गया TV till 8 PM. ये 8 यहाँ पे क्या सिग्निफिक कि 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड है. जो ये 2 है ये तो सेमी एसेंशियल हो गए, बाकी 8 अमाइनो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है. सो दिस TV till 8 PM, कितना इजी है ना याद करने को, TV till 8 PM. सो T stands for है tryptophan, V stand here for valine, T stand here for threonine, I stand here for isoleucine, L stand here for leucine, this L stand here for lysine, and this P stand here for phenylalanine, and M stand here for methionine. So TV till 8 PM. Now
एक और मतलब ऐसे ही मैं रैंडमली मेमोराइज करने के लिए ऐसे ही बना लिया, लाइक से आइसोल्यूलाई वाली मैं फेनी तृप्त थी। देखो कितना इजी है, आइसोल्यूलाई वाली मैं फेनी तृप्त थी। आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वाली मतलब वाली, वेलाइन से वाली, मैं से मिथ्योनिन, फेनी फिनाइल एलेनिन, तृप्त मतलब ट्रिप्टोफैन, तृप्त थी से थ्री या फिर थ्रो बोलो, कुछ भी अपने एजम्पशन से कैसे भी, थ्रियोनिन। ये हो गया एक निमोनिक, 3 निमोनिक हो गए। अब चौथा जैसे मैट विल फ्लाई, मतलब स्पेलिंग वो नहीं रखनी है, मतलब ये जस्ट रैंडमली याद करने के लिए, मैट विल फ्लाई, मिथ्योनिन, एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, वेलाइन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, and this P stand here for phenylalanine, histidine, lysine, and lysine हो गया था, Y, this threonine, arginine. So now further let's talk about for non-essential. So for non-essential they are बाकी जो बचे नॉन एसेंशियल, एलनिन, टायरोसिन, एस्पार्जिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सीरीन, दीज आर नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। सो इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे so like it's little bit funny or you may find it little awkward, but this is how we need to memorize it. So ये मतलब ऐसे ही, like for pro तेरो सिस्टर, ऐसो शेरनी, गुलू गुलू गाली आला. So I have memorized it like that only, like for pro for proline, tero means for like tyrosin, sister, let's memorize like cysteine, and eso like eso means for like aspartic acid and aspargine. eso दो बार है ना, तो aspartic acid and aspargine. eso शेरनी से for like serine, gulu for like gluno, glutamine and glutamic acid. Gali here signifies glycine and आला मतलब एलानिन. सो प्रो तेरो सिस्टर, ऐसो शेरनी, गुलू गाली आला. सो now if you want to share, you need to memorize, like you need to make your own mnemonics, क्योंकि जितना हम खुद से करते हैं वही हमें याद रहता है. So this is all about amino acids. So we will discuss later on regarding its properties and its optical, like these all amino acids, they are further how they are categorized, like for polar amino acids, aliphatic amino acids. This we will study later on. So thank you so much. Hope you will like you all have liked my video. So please like it, share it, and next we will study regarding its properties. So thank you so much.